عزیز طلبہ، اس وقت ہمارے سامنے 10ویں جماعت کی تاریخ کی کتاب کا سیاسیات کے حصے کا آخری سبق یعنی بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز ہے۔ صفحہ نمبر 97۔ بھارتی جمہوریت جو ہے، آج ہم دنیا کے ہر ملکوں کو جمہوری ملک کہتے ہیں، لیکن عملاً لوگوں کے حقوق اور آزادی کو برقرار رکھنے اور عوامی فلاح و بہبود کو ترجیح دینے والی جمہوریت بہت کم ملکوں میں پائی جاتی ہے۔ جمہوریت کے سامنے فوجی نظام حکومت ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے عالمی سطح پر حقیقی جمہوریت کا پھیلاؤ اور ہر ملک میں اس پر انحصار کرنا جمہوریت کو درپیش ایک بڑا چیلنج ہے۔ جمہوریت کہتے ہیں عوام کی اپنی حکومت کو، جس میں عوام کی رائے کو اور عوام کے ذریعے جب الیکشن کا رزلٹ آتا ہے، اس کے بعد جب حکومت بنتی ہے تو اس حکومت کو کہتے ہیں جمہوری حکومت، جس میں عوام کی ووٹ کے ذریعے نمائندے چن کر آتے ہیں اور وہ اپنی سرکار بناتے ہیں۔ لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو بھارتی جمہوریت ہے، جس کا قیام ہوا 26 جنوری 1950 کو، اس کو آج بھی کچھ چیلنجز جو ہے درپیش ہیں، جن کا سامنا کرنا اور جن سے مقابلہ کرنا ہمیں ضروری ہے، اور ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنا ہماری جو ہے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو حل کرنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے تو جس طرح اگر ہم تمام ممالک کی بات کریں، اگر دنیا کی سطح پر بات کریں، تو یہاں پر فوجی حکومت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے یہاں پر آپ کو تصویر میں بتایا جا رہا ہے کہ معمر غذافی کی جو حکومت تھی لیبیا میں، تو ایک فوجی حکومت تھی۔ فوجی حکومت میں ہوتا یہ ہے کہ فوجی حکمراں سیاسی حکمرانوں پر غالب آ جاتے ہیں اور ان سیاسی حکمرانوں کو ہٹا کر ایک فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت شروع ہو جاتی ہے، اور عوام کی اس میں کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی۔ عوام کی کسی بات کو اس میں اولویت نہیں دی جاتی، نہ ہی اس حکومت میں عوام کا کوئی شیئر ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بھارتی حکومت کی بات کریں، بھارت کے اپنے مسائل پر بات کریں، تو دنیا کے تمام مسائل سے جدا تر ہمارے اپنے مسائل ہیں، اور بھارت کے مسائل جتنے سنگین ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی اتنی بڑی جمہوریت میں اتنے ڈھیر سارے مسائل نہیں ہیں جتنے ہمیں درکار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایک کامیاب جمہوری ملک ہیں، اور ان مسائل کی موجودگی ہماری ناکامی ظاہر نہیں کرتی، بلکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم گوناگون شعبوں میں کس طرح ترقی کر رہے ہیں۔ یہاں جو پہلا مسئلہ ہمیں بتایا گیا ہے صفحہ نمبر 98 پر، پہلا مسئلہ ہے فرقہ پرستی اور انتہا پسندی۔ مذہبی تصادم اور اس سے پیدا ہونے والی انتہا پسندی بھارتی جمہوریت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سماج میں مذہبی تنازعات بڑھ جانے کی وجہ سے سماجی استقلال کو نقصان پہنچتا ہے۔ انتہا پسندی جیسے واقعات کی وجہ سے جمہوریت میں لوگوں کی شرکت کم ہو جاتی ہے۔ فرقہ پرستی یعنی کہ آج سے پہلے جب ہمارا ملک آزاد ہوا، اس وقت سے لے کر کے آج تک کے جتنے سارے فسادات ہوئے ہیں، اگر ہم ان سب کا شمار کریں گے تو ہمیں ایک بہت بڑا نمبر ہاتھ آئے گا کہ اتنے ڈھیر سارے افراد صرف فرقہ پرستی کی وجہ سے مارے گئے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، دیکھیے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کا یہ آفیشیل ڈیٹا ہے 1953 سے 2011 تک کے کتنے افراد جو ہے اس میں فرقہ پرستی کی نذر ہوئے، کتنے افراد نے اس معاملے میں اپنی جان گنوا دی۔ تو یہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج بھی بھارتی جمہوریت کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، تو وہ فرقہ پرستی ہے، کہ ایک مذہب کا دوسرے مذہب کے لوگوں پر ظلم کرنا، اور اس طرح جو ہے اس انتہا پسندی کا سامنا کرنا، یعنی جو دوسرا جو طبقہ ہے، جو پچھڑا ہوا طبقہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ سماجی طور پر، سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر کسی بھی طور پر جو ہے دبا کچلا طبقہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ ہندو مسلمان ہی فساد ہو، اس میں ایک مذہب کے بھی دو الگ الگ فرقے شامل ہو سکتے ہیں، اور ان میں فسادات ہو سکتے ہیں، ان میں انتہا پسندی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے نکسلواد تحریک، بائیں بازو والے شدت پسند۔
भारत का एक बड़ा मसला नक्सलवाद है। बेज़मीन किसानों और आदिवासियों के साथ होने वाले नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करने के लिए नक्सलवाद का आगाज़ हुआ। नक्सलवाद ने अब जारहाना रूप इख्तियार कर लिया है। अब इसमें किसानों और आदिवासियों के मसाइल की अहमियत कम हो गई है। इसकी बजाय नक्सलवादी गिरोह पुरतशद्दुद तरीक़ों से हुकूमत के मुखालफत करने, पुलिस की टोलियों पर हमला करने जैसे तरीक़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। नक्सलवाद तहरीक के बारे में आपको बता दूं कि ये नक्सलवादी तहरीक जो है नक्सलबाड़ी नाम के गांव से शुरू हुई और ये गांव वेस्ट बंगाल यानी मगरबी बंगाल का हिस्सा है। यहाँ पर जो है आदिवासियों के मसाइल हल ना होने की सूरत में इन लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हुए, शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करते हुए इन लोगों ने हथियार उठा लिया और हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गए। आज जो है भारतीय जमहूरियत का जो सबसे बड़ा मसला है वो नक्सलवाद ही है। और ये जो चारू मजुमदार आपको नज़र आ रहे हैं, चारू मजुमदार नक्सलवाद तहरीक के सरबराह थे, यही बानी थे। और बाद में चारू मजुमदार की मौत के बाद ये नक्सलवाद तहरीक के जो सरबराह बने वो कानू सान्याल बने। यहाँ पर आपको उनकी भी तस्वीर नज़र आ रही है, कानू सान्याल की। लेकिन इन दोनों के बाद नक्सलवाद तहरीक जो है जिसका मकसद था आदिवासियों को इंसाफ दिलाना, वो मकसद ख़त्म हो गया। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पुरतशद्दुद तरीके से हुकूमत की सिर्फ मुखालफत करने को अपना एक लक्ष्य बना लिया। आज जो है वो पुलिस की टोलियों पर हमला करते हैं, फ़ौज की टुकड़ियों पर हमला करते हैं, सीआरपीएफ़ के जवानों पर हमला करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये उनकी कामयाबी है। देखिए इस तरह की जो न्यूज़ है आपके सामने दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र सेकंड वर्स्ट हिट बाय नक्सलिज़म। और एक दूसरी आपको न्यूज़ नज़र आ रही है कि ये लोग जो हैं क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी फ़ौज में शामिल कर लेते हैं और उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की खबरें आए दिन अखबारात में आपको नज़र आती है। इसके बाद जो मसला दिया हुआ है हमारे सामने वो है बदउनवानी। भारत में अवामी शोबों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का मसला पाया जाता है। सियासी और इंतज़ामी सतह पर बदउनवानियों की वजह से सरकार की कारकर्दगी की सलाहियत कम हो जाती है। सरकारी कामों में लगने वाले वक्त, अवामी सहूलियात का पस्त मेयार, मुख्तलिफ माली बदउनवानियों की वजह से लोगों में पूरे निज़ाम के ताल्लुक से बेएतबारी और बेइत्मीनानी के जज्बात पैदा हो जाते हैं। इंतखाबी अमल में होने वाली बदउनवानियाँ, जाली राय दही यानी बोगस वोटिंग, राय दहिंदगान को रिश्वत देने, वोट पेटी उठा ले जाने जैसे वाक़यात की वजह से इंतखाबी अमल से लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाता है। यानी बदउनवानी के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। यहाँ पर किसी सरकारी दफ्तर में भी बदउनवानी हो सकती है या फिर इंतखाबी अमल में भी बदउनवानी हो सकती है। बदउनवानी के कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग शक्लें हो सकती हैं। और आज जो है एक शख्स की या हम तमाम लोगों की ज़िंदगी में बदउनवानी जो है वो एक अहम हिस्सा बनते जा रही है। उसको हर सेक्टर में कहीं ना कहीं जो है उसका हमें सामना करना पड़ता है। आज भारतीय जमहूरियत को ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद नंबर आता है सियासत और जराइम का, कि सियासत में जराइम से मुंसलिक जो लोग हैं वो दाखिल हो रहे हैं और बड़ी तादाद में दाखिल हो रहे हैं। यह सियासी अमल में मुजरिमों की बढ़ती हुई शिरकत जमहूरी निज़ाम के लिए एक संगीन मसला है। मुजरिमाना पस मंज़र, मुजरिमाना नौइयत के मसाइल, नौइयत के इल्ज़ाम, बदउनवानियों के इल्ज़ाम के हामिल अफराद को सियासी पार्टियाँ अपना उम्मीदवार बनाती हैं। इस वजह से सियासत में दौलत और गुंडागर्दी का ज़ोर बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन के मौका पर तशद्दुद के इस्तेमाल के इम्कानात बढ़ गए हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग जो है जराइम से मुंसलिक होते हैं उनको सियासी पार्टियाँ अपना टिकट देती हैं और वो लोग अवामी इंतखाब के ज़रिए चुनकर पार्लियामेंट के मेंबर भी बन जाते हैं। यानी कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक ऐसे लोगों की राहें हमवार हो जाती हैं जो लोग जो है इस तरह के काले कारनामे अंजाम देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अभी आपके सामने देखिए पार्टी वाइज एमपीज़ विद डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस। यहाँ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस के ज़रिए के मुताबिक जो है पार्टी के मुताबिक आपके सामने लिस्ट ज़ाहिर है। 2019 की पार्लियामेंट में मुजरिमों की तादाद यहाँ बताई गई है कि कितने केसेस हैं और कितने ऐसे लोग हैं।
देखिए, ये जो हमने देखा कि फ़िरका परस्ती, नक्सलवाद, बदعنवानी, सियासत और जराइम वगैरह, ये तो तमाम मसाइल हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारी समाजी मुश्किलात भी हैं। अब ये समाजी मुश्किलात क्या हैं? ये समाजी मुश्किलात बेरोज़गारी है, मनशियात का फैलाव है, कहत, वसाइल की गैर मसावी तकसीम, अमीरों और गरीबों के दरमियान बढ़ती हुई खलीज, ज़ात पात पर मबनी समाजी निज़ाम वगैरह मसाइल को हल करना ज़रूरी है। ये जो तमाम मसाइल हैं ये अपनी जगह पर बरकरार हैं। इन समाजी मसाइल पर आज भी हम काबू नहीं पा सके हैं। आज हमें तरक्की करना है तो इन तमाम मसाइल को हमें ख़त्म करना होगा। और अब दिया हुआ है, ये तमाम मसाइल तो दिए हुए हैं, लेकिन अब उसके हल के ताल्लुक़ से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए नंबर 1 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि जमहूरियत में कसरत राय को ज़्यादा अहमियत हासिल है। जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी इक़्तिदार में आती है। पार्लियामेंट में सारे फैसले कसरत राय से किए जाते हैं। अक्सरियती समाज की फलाह व बहबूद जमहूरियत का मकसद होता है। कसरत राय को अहमियत देते हुए किल्लत राय और अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी होने का इम्कान होता है। अगरचे जमहूरियत कसरत राय से चलने वाली सरकार होती है, फिर भी किल्लत राय की हामिल अफराद को फ़ैसले के अमल में शामिल करना और उनके मफादात का ख्याल रखना भी हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुख्तसरन ये कि जमहूरी हुकूमत में सब लोगों की राय को अहमियत दी जानी चाहिए। इसी तरह इस अम्र का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि अक्सरियत से बनने वाली हुकूमत महज अक्सरियती समाज की सरकार ना बन जाए। हमा लसानी, हमा नस्ली, हमा लसानी, हमा ज़ाती और तमाम फ़िरके के गुरोहों को जमहूरियत में फ़ैसले के अमल में शरीक होने के यकसा मौक़े हासिल होने चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है दूसरे नंबर पर कि अदालतों को से भारत की अदालतें सियासी अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शफ़ाफ़ बनाने के लिए शऊरी तौर पर कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। ख़ास तौर पर मसाइल को, सियासत को जराइम से महफूज रखने के लिए अदालतें मुजरिमों को सख्त सज़ाएँ देती हैं और सियासी अमल में उनकी शिरकत पर पाबंदी आयद कर रही है। भारत में जमहूरियत को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ़ हुकूमत, इंतज़ामिया और अदालती सतह पर कोशिश करना काफ़ी नहीं है। इसके लिए समाजी और इंफरादी सतह पर हर फ़र्द को शऊरी तौर पर कोशिश करनी चाहिए। सरकारी और इंतज़ामिया सतह पर सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, खुद इमदादी गिरोह का क़याम, महात्मा गांधी कौमी देही रोज़गार स्कीम जैसी कई स्कीमों पर अमल किया जा रहा है। ख़वातीन की सियासी नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए मकामी हुकूमती अदारों में ख़वातीन के लिए 50% नशिस्तें महफूज की गई हैं। भारत में जमहूरियत को कामयाब बनाना हो तो तमाम सतहों पर शहरियों की शिरकत में इजाफ़ा होना चाहिए। ख़ास तौर पर हुकूमती कामकाज की सतह पर इजाफ़ा हो तो अवामी पॉलिसियों की नौइयत में तब्दीली आएगी। बातचीत के ज़रिए वो पॉलिसियाँ वज़ा की जाएगी। इक़्तिदार में जो लोग शरीक नहीं हो सकते उनके साथ तबादला ख़याल करना जमहूरियत की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। हमें अपनी इंफरादी ज़िंदगी में भी मसावात, आज़ादी, समाजी इंसाफ, मजहबी गैर जानिबदारी जैसी इक़दार का एहतराम करना और उन्हें परवान चढ़ाना चाहिए। हर एक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो इस मुल्क का एक ज़िम्मेदार शहरी है, तभी जमहूरियत कामयाब होगी। हम सब को ये सोचना होगा कि हम सब जो है इस जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, हम अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक के भारत एक कामयाब जमहूरी मुल्क नहीं हो सकता। इसके लिए हम सब की शिरकत लाजमी है, हम सब का इसमें शरीक होना ज़रूरी है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ।